Morning, students. Day before yesterday, we completed part 1 of the chapter Madam Rides the Bus, and today we will do part 2 of the same chapter. As in the part 1, we studied about how eager was Wally to have a ride on bus, and how her this small desire, or you can say tiny desire, grew into an overwhelming desire. And for having a ride in bus, she had planned a lot of things. She calculated, recalculated, planned and replanned everything to have ride in the bus. Now in the part 2, the day has arrived when Valli finally took her bus journey. Well, one fine spring day, the afternoon bus was just on the point of leaving the town and turning into the main highway when a small voice was heard shouting, "Stop the bus! Stop the bus!" And a tiny hand was raised commandingly. Now, though that afternoon has arrived and it was spring season, और बस जो थी, आफ्टरनून बस जो थी, वो विलेज से मेन रोड हाईवे की तरफ टर्न ही कर रही थी। पीछे से कमांडिंगली ऑर्डर देते हुए, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, एक आवाज़ जो थी, एक छोटी सी आवाज़ जो थी वो सुनाई दी। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल and the conductor, sticking his head out of the door, said, "Hurry then, tell whoever it is to come quickly." So the bus slowed down. ठीक है, धीरे धीरे बस की स्पीड जो थी वो कम होगी. एंड द कंडक्टर ही स्टक आउट हिज हेड आउट ऑफ द डोर एंड टोल्ड वली दैट कॉल whosoever is to come quickly, कि अगर कोई और भी है तो उसको बुलाए, जिसने भी आना है. "It's me," shouted Wally. "I'm the one who has to get on." So Wally told the conductor that it's me and I have to go alone. By now the bus had come to a stop and the conductor said, "Oh, really? You don't say so." "Yes, I simply have to go to town," said Wally, still standing outside the bus. "And here is my money." She showed him some coins. तो वली ने उसको बोला, कंडक्टर को, "देर इज़ नो वन टू कम, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन." सिर्फ मुझको बस लेनी है. और उस टाइम तक बस जो थी वो स्टॉप हो गई थी, और वली को लगा कि शायद कंडक्टर उसको बिलीव नहीं करेगा, अभी बस में चढ़ी नहीं थी, और उसने उसको coins दिखाए. "And here is my money." She showed him some coins. Okay, but first you must get on the bus," said the conductor, and he stretched out a hand to help her up. So the conductor said, "Okay, fine, you can come." And for helping her to get into the bus, he gave his hand. "Never mind," she said. "I can get on by myself. You don't have to help me." बट वाली जो थी वहाँ पर अपने आप को एक छोटा बच्चा नहीं समझ रही थी. शी वॉज कंसिडरिंग हर सेल्फ एज अ मेच्योर्ड वन. तो उसने बोला कि आई डोंट नीड योर हेल्प. ठीक है. द कंडक्टर वॉज अ जोली फॉन्ड ऑफ जोकिंग. "ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माई फाइन मैडम," ही सेड. तो कंडक्टर जो था थोड़ा सा जॉली काइंड, मतलब मजाक वगैरह जो करता है. एंड ही सेड दैट, "डोंट गेट एंग्री विथ मी मैम." ठीक है. एंड हैव अ एंग्री विथ मी माई फाइन मैम. "Here, have a seat right up there in front." उसने बोला, "मैडम डोंट गेट एंग्री, और वहाँ सामने बिल्कुल वहाँ पर आप सीट ले सकती हैं." "Everybody move aside please, make way for madam." फिर उसने मजाक करते हुए कहा, "प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ रास्ता छोड़ दीजिए, मैडम को रास्ता दीजिए." It was the slack time of day and there were only 6 or 7 passengers on the bus. It was the slack time of day. Slack time क्या होता है? A time when there is not much work. जैसे when I was explaining the chapter, तब मैंने आपको बताया था कि अगर हम मॉर्निंग का टाइम और इवनिंग का टाइम बोलें तो हम स्लैक टाइम नहीं बोलेंगे, क्योंकि उस टाइम लोग जो है ज़्यादा ट्रैवल करते हैं. सिंस इट वॉज आफ्टरनून टाइम, तो वेरी लेस पीपल ट्रैवल.
सो देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस. और बस में कितने पैसेंजर्स है? 6 और 7. दे वर ऑल लुकिंग एट वॉली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर. वॉली वॉज ओवरकम with shyness. So everyone was looking at Wally and laughing as the conductor was making fun. ठीक है. और वॉली को क्या था, थोड़ी सी उसको शर्मिंदगी से महसूस हुई. Avoiding everyone's eyes, she walked quickly to an empty seat and sat down. As the conductor showed her the seat, सबसे नजरें बचाती हुई वो सीट पर जाकर फटाफट जाकर वो सीट पर बैठ गई. Wally sat on a seat. May we start now, madam? The conductor asked smiling. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. फिर से कंडक्टर ने मजाक करते हुए उससे पूछा कि मैडम क्या हम चल सकते हैं. उसके बाद उसने विसल किया 2 बार और बस चल पड़ी. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. तो बस जो थी वो एक न्यू बस थी. ग्लीमिंग का मतलब होता है शाइनिंग, कि बिल्कुल शाइनिंग वाइट थी और उसके ऊपर कुछ ग्रीन स्ट्राइप्स थी. इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर. Here the writer has used literary device simile. जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो एज और लाइक वर्ड यूज़ करके तो वहाँ पर क्या होती है? सिमिली. सो यहाँ पर राइटर ने क्या कहा है? इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर. जो ऊपर सर के ऊपर जो बार्स थी वो कैसे थे? सिल्वर के जैसे चमक रही थी. डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वली अबव द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटिफुल क्लॉक. द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस. तो जहाँ पर वली बैठी हुई थी विंडो के ऊपर जो थी वहाँ पर एक क्लॉक थी और द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जूरियस, वेरी कंफर्टेबल. Wally devoured everything with her eyes, but when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. तो वली ने जो था सब कुछ बस के अंदर देखा, लेकिन जैसे उसने बस के बाहर खिड़की से झांकना शुरू किया तो हर व्यू वॉज curtailed. हर व्यू वॉज शी वॉज नॉट एबल टू सी, क्योंकि वहाँ पर एक कैनवस ब्लाइंड था और जिसकी वजह से क्या था, विंडो का लोअर पार्ट जो था वो ढका हुआ था. सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड. तो वो सीट के ऊपर खड़ी होगी और ब्लाइंड से, पियर का मतलब होता है झांकना, और जो पर्दा से जो था उससे बाहर उसने देखना शुरू कर दिया. द बस वॉज नाउ गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कैनल. द रोड वॉज वेरी नैरो. On one side there was the canal and beyond it palm trees, grasslands, distant mountains and the blue sky. So she was enjoying the view outside. और उस रोड के वन साइड कैनल थी और कैनल के उस तरफ, बियॉन्ड का मतलब उस तरफ, पाम ट्रीज थे, ग्रास लैंड्स, दूर दूर तक माउंटेन्स दिखाई दे रही थी एंड ब्लू स्काई. On the other side was a deep ditch and then acres and acres of green field, green, green, green as far as the eye could see. और दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ एक खाई थी और उसके दूर तक एकड़ दूर दूर तक फैले हुए ग्रीन फील्ड्स थे. ग्रीन 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 एज फार एज द आई कोड सी. अब यहाँ पर राइटर ने ग्रीनरी को एम्फेसाइज करने के लिए उसने ग्रीन ग्रीन वर्ड को बार बार यूज़ किया है और यहाँ पर जो लिटरेरी डिवाइस है वो है रेपिटिशन, क्योंकि ग्रीन वर्ड जो है वो बार बार यहाँ पर रिपीट हुआ है. Oh, it was all so wonderful. Suddenly she was startled by a voice. Listen, child, said the voice. You should not stand like that. Sit down. अचानक से क्या हुआ, एक वॉइस उसको सुनाई दी और उसने उसको टोकते हुए कहा कि बच्चे, that you should not stand, you should sit down. Sitting down, she looked to see who had spoken. It was an elderly man
who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. So Wally got annoyed. Annoyed का मतलब थोड़ा सा गुस्सा आ गया. उसने देखा कि एक elderly person था and that person was concerned for her. There is nothing here. Who is a child? She said haughtily. हॉटिली का मतलब विद प्राउड, घमंड से उसने बोला कि यहाँ पर कौन सा बच्चा है. आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स. जैसे दूसरे लोगों ने बस का फेयर पे किया है वैसे ही मैंने भी पूरा फेयर पे किया है. द कंडक्टर चाइम्ड इन. ओ सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम. डू यू थिंक अ mere girl could pay her own fare and travel to the city all alone? अब वो कंडक्टर फिर से उसने बोला कि सर ये ग्रोन अप मैडम है, आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी लड़की जो है अपना किराया भर सकती है और खुद सिटी जा सकती है. Wally shot an angry glance at the conductor and said, I am not a madam. Please remember that. And you have not yet given me my ticket. तो वल्ली को ने एंग्री ग्लैंस, शी शोट एन एंग्री ग्लैंस, गुस्से से उसको देखा कंडक्टर को और उसको बोला कि मैं मैडम नहीं हूँ और आप ये याद रखना. एंड यू हैव नॉट गिवन मी माई टिकट. I will remember, the conductor said, mimicking her tone. Everyone laughed and gradually Wally too joined in the laughter. तो कंडक्टर ने बोला कि मैं याद रखूँगा और वल्ली की मिमिकिंग का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना. और सब हर कोई बस में हंसने लग गया एंड स्लोली वल्ली भी उनकी हंसी में उसने उनको ज्वाइन कर लिया. The conductor punched a ticket and handed it to her. Just sit back and make yourself comfortable. Why should you stand when you have paid for a seat? तो कंडक्टर ने टिकट देते हुए कहा, वाई डोंट यू सिट कंफर्टेबली, क्योंकि आपने तो पूरा पैसा जो है फेयर जो है वो पे किया है. बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन. उसने बोला मेरी मर्जी, और दोबारा वो खड़ी हो गई. बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट you may fall and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. That is why we want you to sit down, child. फिर उसने बोला कि बेटा एकदम से तुम गिर सकती हो, तुम्हारे को चोट लग सकती है, अचानक से मोड़ आ गया या कहीं पर ब्रेकर आ गया और एकदम से ब्रेक लगानी पड़ेगी तो तुम गिर सकती हो, इसलिए उसको बोला कि तुम बैठ जाओ. आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई विल टेल यू, she said irritably. I am 8 years old. गुस्से से उसने बोला. Of course, how stupid of me. 8 years, my. फिर से कंडक्टर ने कहा हाँ 8 years. The bus stopped, some new passengers got on and the conductor got busy for a time. Afraid of losing her seat, वल्ली finally sat down. अब बस रुकी, कुछ पैसेंजर्स आए तो वल्ली को लगा कि उसकी सीट चली जाएगी, फटाफट सीट पर जाकर बैठ गई. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Wally as the bus started again. एक बूढ़ी सी औरत आकर बैठ गई और उसने पूछा कि क्या तुम अकेली हो. Wally found the woman absolutely repulsive. उसको उस लेडी की देखते ही उसको जो था उसको एक डिसलाइकिंग सी हो रही थी. Such big holes as she had in her earlobes and such ugly earrings in them. वो बूढ़ी औरत थी और उसके जो ईयर लॉब्स थे जहाँ पे हम टॉप्स वगैरह या ईयरिंग्स पहनते हैं वो बड़े बड़े छेद हो रखे थे और उसने देखा कि कितनी गंदी ईयरिंग्स पहनी हुई है. एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमन वॉज च्यूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी टाइम. तो उसने देखा कि वो जो थी बीटल नट चबा रही थी और उसका जूस जो था वो उसके लिप्स पर आ सकता था. Who could be sociable with such a person? तो वली जो थी उसको उस एल्डरली लेडी की अपीयरेंस, द बीटल नट शी वाज च्यूइंग, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो थी उसको जो थी थोड़ी सी अगली सी लग रही थी. एंड शी डजेंट वॉन्ट टू टॉक टू दैट लेडी. Yes, I am traveling alone, she answered curtly, and I have got a ticket too. तो उस लेडी ने पूछा था कि क्या तुम अकेली ट्रेवल कर रही हो,
तो वल्ली ने थोड़ा सा चिढ़ते हुए उसको बोला कि हाँ मैं अकेली जा रही हूँ और मेरे पास टिकट भी है. Yes, she is on her way to town, said the conductor with a 30 पैसा टिकट. फिर से कंडक्टर ने बीच में मजाक करते हुए कहा कि ये टाउन जा रही है और इसने 30 पैसा टिकट लिया. Oh, why don't you mind your own business, said Valli. But she laughed all the time and the conductor laughed too. फिर वल्ली ने फिर से कंडक्टर को बोला कि आप अपना काम क्यों नहीं करते हो, लेकिन जब वो बोल रही थी शी वॉज लाफिंग, तो कंडक्टर भी उसकी बात को सुनकर हंस रहा था. बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल. इज इट प्रॉपर फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन? ड्रिवल का मतलब नॉनसेंस क्वेश्चंस. वो लेडी को समझ नहीं आ रहा था कि वल्ली उससे बात नहीं करना चाहती, लेकिन वो बोलती जा रही थी कि तुम इतनी छोटी हो, तुम अकेले ट्रेवल कर रही हो. डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? व्हाट इज़ द स्ट्रीट? व्हाट इज़ द हाउस नंबर? लाइक एन एल्डरली पर्सन जो कंसर्न होते हैं हमारे बारे में, वैसी वो ओल्ड लेडी जो थी वो वल्ली के बारे में कंसर्न थी. एंड शी वॉज इंक्वायरिंग वेदर शी नोज वेयर शी हैज़ टू गेट डाउन इन टाउन, वेयर व्हाट इज़ द स्ट्रीट, व्हाट इज़ द हाउस नंबर. You need not bother about me. I can take care of myself, Wally said, turning her face towards the window and staring out. तो वल्ली ने उसको बोला कि आपको मेरे बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और उसने अपना फेस विंडो की तरफ कर दिया और वो बाहर देखना शुरू कर दिया. अब बेटा ये जो 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, ये आपने अपनी नोटबुक में करने हैं. एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड, वी हैव एंडेड पार्ट 2 of Madam Rides the Bus.